header node. Okay, it always contains header node. There are two types of header linked list are there. सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अच्छा, खुशहाल लेफ्ट हो गया। आपका नाम दिख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। Now is that visible to you? यस सर। Okay. यस सर। This header linked list, it always contains one node, special node that is called as header node. There are mainly two types of header linked list are there. That is grounded header list and circular header list. Grounded header list and circular header list. Okay. Now let's have a look towards these grounded header list and circular header list. Okay. This grounded header list has one pointer variable that is nothing but start, which always points to the header node. Okay, which always points to the header node. This header node contains two parts. One part is containing the link of first node. Okay, link of first node. Okay, this is nothing but the link. Okay, and the second part contain doesn't it contain nothing. Okay, इसमें कुछ भी नहीं रहता. That start pointer variable will hold the address of this header node. Okay, this start pointer variable contains the address of this header node only. Okay, header node का pointer उसमें sorry address उस start में रहता है. Okay, and this header node will have the link of first node of your grounded header list. Okay, this header node contains the address of first node. Then next. Okay, suppose this is the last node, that means there is a null value. Okay, so if suppose this is the linked list, grounded header list, okay, which has one header node, okay, which has header node whose address is available into the start node. Okay, अभी तक हमने जो भी लिंक लिस्ट देखा था उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट था, हमारा स्टार्ट पॉइंटर था, उसमें क्या स्टोर करके रखते थे हम लोग? फर्स्ट लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते थे, बट राइट नाउ we will store the address of this header node into the start node. Okay, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस यह है क्या है, इस हेडर नोड का पॉइंट, हेडर नोड का लोकेशन, हेडर नोड का एड्रेस इस पर्टिकुलर स्टार्ट पॉइंट में रहता है, स्टार्टिंग पॉइंटर वेरिएबल, एंड इस हेडर नोड में क्या रहेगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल रहेगा. ओके, so this is nothing but the grounded header list. This is grounded header list. Grounded header list. Okay. Now
In the same way we can have circular header list also. इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलर हेडर लिस्ट भी रहेगा. अब इस सर्कुलर हेडर लिस्ट में क्या रहेगा, ये जो लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड में उसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू स्टोर ना करते हुए हम लोग किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, इस हेडर नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे. ओके, इन द सर्कुलर हेडर लिस्ट दिस लास्ट नोड will points to the header node, will points to the this header node. Okay, so that we can traverse in a circular fashion, so that we can fetch or we can visit any node from the linked list in a circular fashion. Okay, there is a circle in this particular header list. Okay, so hence we can call it as a circular header list. Okay, so let's have a look towards circular header list. ये तो हो गया ग्राउंडेड हेडर लिस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट अ सर्कुलर हेडर लिस्ट. ओके, अब मैं इसी को सर्कुलर हेडर लिस्ट बनाऊंगा. तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हमारे हेडर नोड का एड्रेस स्टोर रहेगा. ओके, सपोज करो कि ये हमारा 100 है, 200 है, 300 है, 400 है. ओके, तो इसमें इस फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा दैट इज 200. इसके लिंक पार्ट में इसका एड्रेस स्टोर रहेगा लाइक 300, 400, एंड हियर in the last node link part contain the address of this header node. Okay, address of this header node, that means it will points to the header node again. Okay, so that there is a circle, so that there is a circular fashion, means we can access the particular node in a circular fashion. हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स भी अगर हमको करना है तो हम लोग सर्कुलर फैशन में ट्रैवर्स कर सकते हैं in this particular circular header list. Is that clear? Now, now it is observed that in the grounded header list, if suppose grounded header list is empty कब कहेंगे हम लोग, जब grounded header list की बारी आती है, so we can call it as a grounded header list is empty if and only if link of start is null. Okay, grounded header list is empty if and only if link of start equal to null. Okay, means हम ग्राउंडेड हेडर लिस्ट को एम्प्टी कब कहेंगे, जब हमारा लिंक ऑफ स्टार्ट मीन्स इस स्टार्ट का जो लिंक है, इस स्टार्ट का लिंक कहां पर रहेगा, हेडर नोड के लिंक पार्ट में, है ना, क्योंकि स्टार्ट में हमने हेडर नोड का एड्रेस स्टोर किया है. सो हेंस वी कैन से दैट आवर ग्राउंडेड हेडर लिस्ट इज एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ लिंक ऑफ दिस स्टार्ट कंटेन्स नल वैल्यू, मींस इस हेडर नोड के लिंक पार्ट में क्या स्टोर है, नल वैल्यू स्टोर. इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? इफ इट इज अ ग्राउंडेड हेडर लिस्ट, अगर यहां पर ये सर्कुलर नहीं है, मींस लास्ट नोड इस हेडर नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, दैट मींस इट इज अ ग्राउंडेड हेडर लिस्ट. Okay, and we can say that grounded header list is empty if and only if link of start, अभी स्टार्ट का लिंक कहां पर अवेलेबल है, स्टार्ट का एड्रेस, स्टार्ट में क्या अवेलेबल है, स्टार्ट में क्या स्टोर करके रखा है, हेडर नोड का एड्रेस दैट इज 100, है ना. स्टार्ट में इस हेडर नोड का एड्रेस स्टोर करके रखा है. ओके, सो इस लिंक ऑफ स्टार्ट मींस इसमें जो एड्रेस अवेलेबल है उसका लिंक पार्ट दैट इज यहां पर. ओके, हेडर नोड का लिंक पार्ट. ओके, सो लिंक ऑफ स्टार्ट दैट इज हेडर नोड का लिंक पार्ट दैट इज इक्वल टू नल. ओके, तब हम बोलेंगे कि हमारा ग्राउंडेड हेडर लिस्ट एम्प्टी. ओके, एंड we can say that our circular header list is empty if and only if that link of start equal to start. Okay, we can say that circular header list is empty if and only if
link of start equal to start. ओके, तब हम बोलेंगे कि हमारा सर्कुलर हेडर लिस्ट क्या है, एम्प्टी है. Is that visible to you everyone? नहीं, हमको क्या दिखाएगा? Now, is that visible to everyone? Yes, sir. Okay, so we can say that circular header list is empty if and only if link of start equal to start. That means if start के लिंक पार्ट में हमने क्या स्टोर करके रखा है, स्टार्ट का एड्रेस. मीन्स ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फिलहाल इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार्ट. ओके, दैट इज नथिंग बट योर सर्कुलर हेडर लिस्ट इज एम्प्टी, मींस देयर इज नो नोड, वहां पर कोई नोड अवेलेबल नहीं है. ओके, and here available list we need to maintain as a as an ordinary linked list. Okay, यहाँ पर हमको avail list को avail list is maintained as an ordinary linked list. As an ordinary linked list. Okay, हमको क्या करना है, our list को maintain करना as an ordinary linked list in this particular case. Okay, if you are using grounded header list or circular header list. Grounded header list में special node means header linked list में क्या रहता है, special node available रहता है, that is header node. Okay, इस header list के दो types है, grounded header list and circular header list. grounded header list में सबसे पहले स्टार्ट एक जो पॉइंटर वेरिएबल है उसमें उसने किसको स्टोर करके रखा है, उसमें उसमें हमने हेडर नोड का पॉइंटर स्टोर करके, सॉरी एड्रेस स्टोर करके रखा है. ओके, एंड दिस हेडर नोड कंटेन ओनली, हेडर नोड कंटेन टू पार्ट्स, one part containing the link of first node and another part doesn't contain anything. Okay, उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता. ओके, नाउ दिस हेडर नोड का एड्रेस हमने स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, इतना ध्यान में रखना है. ओके, एंड हेडर नोड में, हेडर नोड के लिंक पार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखा. अब हम बोल रहे हैं कि ग्राउंडेड हेडर लिस्ट एम्प्टी रहेगा. कब एम्प्टी रहेगा, जब लिंक ऑफ स्टार्ट में हमने नल वैल्यू स्टोर कर रखा है. लिंक ऑफ स्टार्ट मींस लिंक इस स्टार्ट का जो लिंक पार्ट है, स्टार्ट का लिंक पार्ट कहां पर अवेलेबल है, हेडर नोड के लिंक पार्ट में. ओके, इफ देयर null value is stored, then we can say that our grounded header list is empty. Okay, and if you are talking about circular header list, then we can say that if it is empty if and only if link of start equal to start. That means this header node link part contain the address of this start variable, start pointer variable. So that we can say that it is a empty circular header list. Okay, so that it is empty circular header list. Here, how can we say that it is a circular header list? Because last node contain the address of this header node in the link part. Okay, last node के link part में इस header node का address available है. That means last node किसको point out कर रहा है, इस header node को point out कर रहा है. Okay, so that we can have a circular fashion in this particular list. Okay, is that clear? समझ में आया? And here at last avail list हमको maintain करना है as an ordinary linked list. Okay, if you are talking about grounded and circular. Okay, हम चाहे grounded header list को देख रहे हैं तो फिर यूज कर रहे हैं, तो सर्कुलर हेडर लिस्ट को, किसी भी लिस्ट को अगर आप किसी भी तरीके के हेडर लिस्ट को, लिंक लिस्ट को आप यूज करते हैं तो आपको अवेल लिस्ट को मेंटेन करना ही है. ओके, अगर आप अवेल लिस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम मेमोरी मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना. हमको पता ही नहीं रहेगा तो मेमोरी अवेलेबल है भी या नहीं. ओके, so for that reason anyhow you must have to maintain the available list or avail list. Okay, as an ordinary list. So is that clear everyone? थोड़ा रिस्पॉन्ड करते चलो ताकि अपन जल्दी जल्दी कवर अप करें, है ना. और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने लेफ्ट हो जाना. ओके,
अगर आप लेफ्ट हो गए तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, इतना ध्यान रखना। और जैसे अभी 54 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, मुझे अटेंडेंस में भी नहीं 56 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके, और एक बढ़ गया, दैट इज 57 स्टूडेंट्स मुझे चाहिए अटेंडेंस लिस्ट में, ओके। अटेंडेंस में मुझे 57 स्टूडेंट्स चाहिए ही चाहिए, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। Okay. Now we have to traverse in a circular header list. हमको क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखना है सर्कुलर हेडर लिस्ट के साथ। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज नथिंग बट द ट्रैवर्सिंग अ सर्कुलर हेडर लिस्ट, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिथम कल ही सेंड कर दिया है, तो आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा, है ना? हाँ, सो सर्कुलर हेडर लिस्ट, ट्रैवर्सिंग अ सर्कुलर हेडर लिस्ट, वो एल्गोरिथम आप देख सकते हैं। Traversing a circular header list. Okay, traversing in the sense we just have to visit each and every node of our circular header list. हमको क्या करना है, simply visit करना है उस particular header list के ऊपर, that is nothing but the traversing. Okay, so let's start. First step is, that is set ptr equal to link of start. अभी तक हम लोग पॉइंटर जो ट्रैवर्स करने में हमको मदद करता था, उसको हमने उसमें हमने क्या वैल्यू स्टोर करके रखे थे, क्या वैल्यू स्टोर करते थे हम लोग, डायरेक्ट स्टार्ट स्टोर करते थे, है ना, क्योंकि स्टार्ट में ही उस फर्स्ट नोड का एड्रेस अवेलेबल रहता था। बट हियर इन द हेडर लिस्ट, there is a special node, that is header node, in the beginning of our linked list, है ना। So uh, we are having the first node address into the link of header node, okay। So हम लोग डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक ऑफ स्टार्ट से उस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ओके। जिसका जिसका फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने हेडर नोड के लिंक पार्ट में स्टोर करके रखा है, ओके। So hence this time we will set ptr as a link of start, okay। आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेप है। नाउ सेकंड स्टेप इज रिपीट step 3 and 4 while ptr not equal to start, while ptr not equal to start, okay। हमको क्या करना है, स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तब तक जब तक ptr की वैल्यू स्टार्ट नहीं बन जाती तब तक, ओके। सो थर्ड स्टेप इज अप्लाई प्रोसेस। Apply process, that is nothing but we are just visiting to that particular node। अब फिर उसके साथ आप प्रिंट करो या तो फिर डिस्प्ले करो, एनीथिंग वी कैन परफॉर्म, ओके। सो अप्लाई प्रोसेस टू info of ptr, ओके। मींस इस ptr में जो info पार्ट है उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी करें, ओके। एनीथिंग वी कैन परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर node। And fourth, that is nothing but set ptr equal to link of ptr, link of ptr, okay। And then end of step 2, end of step 2, and fifth step is exit, okay। So with the help of this particular algorithm we can traverse in a circular header list। So as we have the circular header list like this, it's a start point,
This points to the header node as we have seen previously in the header list. This is the header node. This points to the first node of our linked list. Maybe suppose like 11 is the info and link is nothing but maybe suppose if it points to the next node. Here 22, it is 100. 100 is stored over here. 200, 300, and one more node is there, that is 400. It points to the header node again. And it points to the header node again because there is a circular header list. Okay, there is a circular header list. There is 11, 20, 30. Okay. So here सबसे पहले क्या करें हम लोग पीटीआर को लिंक ऑफ स्टैक से स्टोर कर दे रहे हैं पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ स्टैक दैट मींस पीटीआर किसको पॉइंट आउट कर रहा है लिंक ऑफ स्टैक को पीटीआर में मैंने स्टोर कर दिया लिंक ऑफ स्टैक तो पीटीआर इज नथिंग बट पीटीआर में हमने क्या स्टोर किया लिंक ऑफ स्टैक तो लिंक ऑफ स्टैक क्या है लिंक ऑफ स्टैक इज नथिंग बट लिंक ऑफ स्टैक क्या है लिंक ऑफ स्टैक कौन बताएगा लिंक ऑफ स्टैक कौन बताएगा आपके सामने लिंक लिस्ट अवेलेबल है लिंक ऑफ स्टैक क्या होगा पीटीआर में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग लिंक ऑफ स्टैक सो लिंक ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है अभी लिंक ऑफ स्टार्ट है हमारा यहाँ पर है ना इसमें अवेलेबल है हेडर नोड के लिंक पार्ट में स्टार्ट का लिंक अवेलेबल है ओके सो लिंक ऑफ स्टार्ट इज नथिंग बट 200 ओके सो पीटीआर में क्या अवेलेबल है 200 अवेलेबल है ओके सो पीटीआर में पॉइंट्स टू द 200 नोड दैट इज फर्स्ट ओके फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करें रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट तो पीटीआर की वैल्यू क्या है पीटीआर की वैल्यू 200 है 100 नहीं है ओके पीटीआर की वैल्यू क्या है 200 स्टार्ट की वैल्यू क्या है 100 है ना स्टार्ट की वैल्यू 100 है सो 200 नॉट इक्वल टू 100 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना 200 इज नॉट इक्वल टू 100 कंडीशन सेटिस्फाई सो इट विल एंटर सो थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है उसने एग्जीक्यूट कर रहा है सो अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर तो पीटीआर का इन्फो पार्ट क्या है मींस पीटीआर में जो एड्रेस स्टोर्ड है उसमें जो इन्फो पार्ट है वो हम लोगों को उसके ऊपर हमने प्रोसेस करना है ओके इसमें क्या स्टोर्ड है 300 इसमें स्टोर्ड है 400 और इसमें स्टोर्ड है 100 ओके सो अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर इज नथिंग बट 11 सबसे पहले 11 के ऊपर प्रोसेस करेंगे हम लोग ओके दैट इज इन्फो ऑफ पीटीआर में 200 so info of ptr that is info of 200 that is 11 now fourth step set ptr equal to link of ptr अब ptr को क्या सेट कर रहा है link of ptr तो ptr क्या है 200 का लिंक पार्ट क्या है 300 ओके सो 300 को स्टोर कर रहे हैं हम लोग ptr में ओके सो दिस ptr will update ptr अपडेट हो गया दैट मींस ptr को हमने क्या किया फॉरवर्ड करा है ओके इट मींस नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है पहले इसने फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किया था अब ये हट जाएगा अब ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है ओके नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट पीटीआर की वैल्यू है 300 नॉट इक्वल टू 100 यस कंडीशन सेटिस्फाइड सो इट विल एंटर अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ पीटीआर राइट नाउ वैल्यू ऑफ पीटीआर इज 300 है ना अभी पीटीआर की वैल्यू क्या है 300 सो 300 में जो इन्फो पार्ट है उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे 300 में इन्फो पार्ट क्या है 300 में इन्फो पार्ट है 20 so 22 के ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इन द सेंस वी विल जस्ट डिस्प्ले इट ओके हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले करेंगे नेक्स्ट 4 सेट ptr इक्वल टू लिंक ऑफ ptr नाउ लिंक ऑफ ptr की वैल्यू 300 सो 300 में लिंक पार्ट है ना दैट इज 400 नाउ 400 वी विल सेट टू द ptr हम लोग 400 ptr में सेट कर रहे हैं ओके नाउ एंड ऑफ लूप नाउ लूप एंड हो गया तो फिर से कंडीशन चेक करेगा नाउ
while PTR not equal to start. So PTR की वैल्यू है 400, 400 not equal to 100. Yes, condition satisfied. फिलहाल PTR की वैल्यू है 400, है ना? PTR की वैल्यू है 400. So PTR will points to this node. Okay. Now 400 not equal to 100. Condition satisfied. So it enters. Apply process to info of PTR. So PTR की वैल्यू है 400. है ना? Info of 400. So 400 का info पार्ट है that is 33. So 33 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे. Okay. Next, fourth step. Set PTR equal to link of PTR. PTR क्या है? 400. 400 का link part क्या है? 100. So 100 को set करेंगे PTR में. 100 will set to PTR. 100 में sorry PTR में क्या set हो गया? 100 set हो गया. Now end of loop तो फिर से condition check करेंगे. PTR not equal to start. That is 100 not equal to 100. PTR की वैल्यू 100 हुई, है? PTR की वैल्यू 100 हो गई इससे 100 हमने सेट कर लिंक और PTR that is 100 को सेट किया PTR में. So now PTR will points to 100 figure में. Okay. So 100 not equal to 100 condition यहाँ पर false हो जाएगी because 100 is always equal to 100. Okay. So hence condition is false. Condition false हो गया तो ये loop end हो जाएगा और यहाँ पर fifth step में आ जाएगा that is exit. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. So now searching item in a circular header list. Okay, so this is also one of the kind of operation we have to perform on the circular header list. Okay, so searching वाला algorithm आप देख सकते हैं. Now searching item in a circular header list. Circular header list. Okay. So let's have a look towards an algorithm. SRCHHL. Here info link start item and now. Okay. Now first step. Set PTR equal to link of start. Okay. Second step, repeat step while info of PTR not equal to item or PTR not equal to start. मीन्स हमको तब तक ये स्टेप रिपीट करना है जब तक हमको आइटम नहीं मिल जाता या तो फिर पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक. ओके, मीन्स पीटीआर का मीन्स वो हेडर नोड को पॉइंट आउट नहीं करता तब तक हमको क्या करना है उस स्टेप को रिपीट करना है. ओके, नाउ उसमें क्या करना है सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर.
Okay, and here end of loop. Next, third step, if info of PTR is equal to item, then set lock equal to PTR, else अगर आइटम नहीं मिलता तो सेट क्या करना है, लॉक इक्वल टू नल. ओके, else set lock equal to null. End of each structure. And last, fourth step is exit. Okay, fourth step is exit. So let's take a circular header list. Circular header list लेते हैं हम लोग. There is a start point which points to the header node. It points to another node, like maybe suppose 10, 20, 30, 40, and this points to the header node back, because it is a circular header list. Okay, its address is 100, 200, 300, 400, 500. Okay, so start में क्या अवेलेबल है, नोड हेडर नोड का एड्रेस इट इज 100. यहाँ पर 100 स्टोर है, यहाँ पर 200, 300, 400, 500 and यहाँ पर 100. Okay, so this particular algorithm is used for searching a node or searching an item in the circular header list. Okay, so सबसे पहला स्टेप, set ptr equal to link of start. हमने क्या करना है, ptr को ptr में link of start स्टोर कर देना है. So ptr हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है ptr, जिसमें लिंक ऑफ स्टार्ट अवेलेबल है. लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है, इसका लिंक पार्ट, लिंक ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट में 100 है, उसका लिंक पार्ट दैट इज 200. So 200 ptr में स्टोर है. So ultimately this ptr will points to first node of our linked list. Okay, now repeat step while info of ptr not equal to item or ptr not equal to start. मीन्स इस स्टेप को तब तक रिपीट करना है जब तक उसको आइटम नहीं मिल जाता लिस्ट में, या तो फिर ptr स्टार्ट को पॉइंट आउट नहीं कर देता, मीन्स हेडर नोड को पॉइंट आउट नहीं करता, तब तक उसने क्या करना है, वो स्टेप को रिपीट करना है, एग्जीक्यूट करना है. सो रिपीट स्टेप वाइल info of ptr not equal to item. तो ptr की वैल्यू क्या है, 200. सो 200 का info पार्ट क्या है, सॉरी सपोज आइटम हमको सर्च करना है, मे बी सपोज लाइक 30 आइटम हमारा है 30 इन्फो पार्ट, हमको 30 वाला नोड हमको सर्च करना है. ओके, सो इन्फो ऑफ ptr दैट इज 200 का इन्फो पार्ट, 200 का इन्फो पार्ट क्या है, 10 है ना. 10 नॉट इक्वल टू आइटम दैट इज 10 नॉट इक्वल टू 30. यस, कंडीशन सैटिस्फाइड है ना. और 10 नॉट इक्वल टू 30 और ptr की वैल्यू क्या होगी फिलहाल 200. सो 200 नॉट इक्वल टू स्टार्ट की वैल्यू 100. सो 200 नॉट इक्वल टू 100. यस, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होगी. ओके, सो लूप के अंदर जाएगा, सेट ptr इक्वल टू लिंक ऑफ ptr, है ना. लिंक ऑफ ptr को ptr में सेट कर देना. तो लिंक ऑफ ptr क्या है, 300. सो 300 किस में स्टोर कर देना है हमको, 200 का लिंक पार्ट दैट इज 300 विल बी स्टोर्ड टू ptr. तो ptr में स्टोर हो गया 300. नाउ दिस ptr पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, है ना. ये हट जाएगा यहां से, अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है. ओके, सेकंड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है. फिर से चेक करेंगे, info of ptr not equal to item. अब info of ptr क्या है, ptr की वैल्यू 300 है. info of 300 that is 20. So 20 not equal to 30. Yes, condition satisfied. Or ptr not equal to start, that is ptr equal to 300 not equal to 100. Condition
ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, सो इट विल एंटर। नाउ सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, फिर से क्या करेंगे हम लोग, पीटीआर का जो लिंक पार्ट है उसको पीटीआर में सेट कर देंगे। सो पीटीआर की वैल्यू 300, 300 का लिंक पार्ट 400, 400 सेट हो रहा है पीटीआर में, सो पीटीआर की वैल्यू होगी 400। नाउ दिस पीटीआर विल पॉइंट्स टू द 400 एड्रेस नोड, तो ये भी हट जाएगा, ये 400 एड्रेस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे इन्फो ऑफ पीटीआर, दैट इज पीटीआर की वैल्यू 400, 400 का इन्फो पार्ट, 400 का इन्फो पार्ट दैट इज 330, 400 का इन्फो पार्ट दैट इज 30, 30 नॉट इक्वल टू 30, कंडीशन फॉल्स। इस यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा, एंड और नहीं, यहाँ पर एंड लगाना है। ओके, एक करेक्शन करो, यहाँ पर और नहीं लगाना है हमको, एंड लगाना है। ओके, ओके, सो 30 नॉट इक्वल टू 30, आइटम की वैल्यू 30 है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स हो रही, एंड पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट, तो पीटीआर की वैल्यू है 400, 400 नॉट इक्वल टू 100, ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। दैट मीन्स एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ही सेटिस्फाई होता है ना। सो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, ये कंडीशन भले सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, इन इन्फो ऑफ पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू 400, 400 का इन्फो पार्ट है दैट इज 30, 30 इक्वल टू आइटम की वैल्यू 30, 30 इक्वल टू 30, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या होगा, लॉग इक्वल टू पीटीआर, मींस पीटीआर की वैल्यू 400, तो 400 कहां जाके स्टोर हो जाएगा, लॉग में। ओके, दैट मींस योर आइटम इज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लिंक लिस्ट टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, और इन केस अगर 50 को सर्च कर रहे होते तो 50 तो अवेलेबल है ही नहीं, है ना। समझ समझ लो कि आइटम की वैल्यू अगर 50 होती, सो 40 30 नॉट इक्वल टू 30 एंड 400 नॉट इक्वल टू 100, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते, तो क्या करता है, सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो फिर लिंक ऑफ पीटीआर दैट इज 500, है ना, सो पीटीआर इक्वल टू 500 हो जाता। सो पीटीआर किसको पॉइंट करता है, लास्ट नोड को, है ना, लास्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, 500 बन जाता पीटीआर। ओके, सो फिर से कंडीशन चेक करते, इन्फो ऑफ पीटीआर दैट इज 500, पीटीआर की वैल्यू 500 है, 500 का इन्फो पार्ट है 40, 40 not equal to 30, yes, condition satisfied, and 500 not equal to 100, yes, this condition also satisfied. Okay, तो क्या करते हैं, सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, तो लिंक ऑफ पीटीआर क्या है, पीटीआर की वैल्यू 500, 500 500 का लिंक पार्ट 100, सो 100 हम लोग स्टोर करते हैं पीटीआर में। फिर से कंडीशन चेक करते हैं, इन्फो ऑफ पीटीआर, ओके, अब पीटीआर की वैल्यू है 100, 100 है ना, इन्फो ऑफ पीटीआर, राइट नाउ पीटीआर भी पॉइंट्स टू 100, तो यहाँ पर कोई इन्फो पार्ट नहीं है। ओके, एंड पीटीआर नॉट इक्वल टू स्टार्ट, सो 100 नॉट इक्वल टू स्टार्ट, दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है। ओके, दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट बाहर चला जाता। इफ पार्ट में हम लोग थर्ड स्टेप में क्या चेक करते हैं, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू 100 है, 100 का इन्फो पार्ट अवेलेबल नहीं है, इक्वल टू आइटम दैट इज 30, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। तो आई स्टार्ट एग्जीक्यूट करके क्या करते हैं हम लोग, लोकेशन में नल वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट मींस लोकेशन में नल वैल्यू है, इसका मतलब आपका आइटम वहां पर अवेलेबल नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिलीट नोड फ्रॉम सर्कुलर इनर लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको दो, एक प्रोसीजर और एक एल्गोरिथम प्रोवाइड किया उन्होंने। ओके, हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं,
Now delete uniform circular header. Delete node from circular header list. ओके, यहाँ पर एक प्रोसीजर होने दी है, प्रोसीजर find DHL, find DHL here, info link start item lock P. First step, set save equal to start and ptr equal to link of start. ptr equal to link of start. Second step, repeat step while info of ptr not equal to item and यहाँ पर भी आपको एंड करना है, ओके, एंड ptr not equal to item, sorry, start. Okay, now here what we have to repeat, set save equal to ptr and ptr equal to link of ptr. ptr equal to link of ptr. End of loop. Step 3. Step 3 में info of ptr, if info of ptr equal to item, then set lock equal to ptr and lock equal to set. Else set lock equal to null and lock equal to set. And if structure exit, fourth step is exit. Okay, and one algorithm is there. Through that algorithm we are calling this procedure first of all, and then we will delete that particular node. Okay, so next algorithm is, algorithm हमारे पास अवेलेबल है, that is del log hl, del log hl info link start avel item. Okay, first call
this find bhl. Okay, find bhl. Here info link start item lock p. Okay, second step, if lock equal to null, then write item not exist, item not in the list, write item not in list and exit and exit. Third step, set link of lock p equal to link of lock. And fourth step, set link of lock equal to Awel and Awel equal to lock. 5. Exit. Okay. So suppose this is algorithm to delete node from circular header list. Okay. अगर हमको circular header list में से node को delete करना है तो हम इस algorithm को लिखेंगे. इस algorithm के थ्रू हम लोग इस procedure को कॉल करें. First of all, to find the node is available in which location, okay, which you are going to delete from the header list, and then we will delete it from this particular. Okay. तो सबसे पहले हेडर लिस्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पर एक स्टार्ट है, स्टार्ट में 100 स्टोर है, ये हेडर नोड को पॉइंट आउट कर रहा है. हेडर नोड में 200 स्टोर है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड 200, नेक्स्ट 300, नेक्स्ट 400, next 500. Okay, this is 500. It points to the header node again. Okay, suppose 10, 20, 30. Okay, it is 100. Okay, so this is your circular header list. If you want to delete this 20 item, okay, 20 info वाला जो भी नोड है उसको अगर आपको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले del log इन एल्गोरिथम को ट्रेस करोगे. आइटम में हमने क्या प्रोवाइड किया है? 20 मींस 20 वाला नोड उसको क्या करना है? डिलीट करना है. ओके, सो सबसे पहले क्या किया उसने? फाइंड कॉल किया फाइंड bhl को. फाइंड bhl प्रोसीजर कॉल हुआ बाय पासिंग आइटम 20. ओके, इन्फो लिंक स्टार्ट आइटम लॉक पी पूरे यहाँ पर पास हो गया. आइटम में आ गया 20 वाला आइटम. सबसे पहले उसको क्या करना है? सर्च करना है कि कौन से लोकेशन में अवेलेबल है. ओके, फर्स्ट सेट सेट इक्वल टू स्टार्ट. स्टार्ट की वैल्यू 100, तो सेव 100 हो गया. हमने सेव में क्या स्टोर किया? 100 स्टोर किया. फिर एंड ptr इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट. अब ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसने क्या किया? फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट किया. ओके, ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है ptr जिसमें 200 स्टोर है. दैट मींस इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ आवर लिंक लिस्ट. ओके, 200 स्टोर किया हमने ptr में. लिंक ऑफ स्टार्ट दैट इज 100 का लिंक पार्ट दैट इज 200. ओके, that will be stored to ptr. Now repeat step, second step, repeat step while info of ptr not equal to item. ptr की वैल्यू 200 है, 200 का info पार्ट दैट इज 10 है ना. 10 not equal to item, item की वैल्यू 20 है, 20 not equal to 10, sorry 10 not equal to 20. yes, condition satisfied. And ptr not equal to start, ptr की वैल्यू 200 है, 200 not equal to start की वैल्यू 100. yes, this condition also satisfied. तो क्या होगा? सेट सेव इक्वल टू ptr मींस ptr में जो वैल्यू है वो सेव में स्टोर करेंगे दैट इज 200, और लिंक ऑफ ptr मींस 200 का लिंक, 200 का लिंक पार्ट है दैट इज 300, 300 को स्टोर करेंगे हम लोग ptr में.
ओके, फिर से लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। इन्फो पीटीआर, नाउ पीटीआर की वैल्यू 300, 300 का इन्फो पार्ट ये हमारा 300, सॉरी दिस इज 300, दिस शुड बी 400, ओके। सो इन्फो पीटीआर, दैट इज पीटीआर की वैल्यू 300 है, 300 का इन्फो पार्ट है 20, 20 नॉट इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स, 20 not equal to 20, condition false, and ptr not equal to stat, yes 300 not equal to stat, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो क्या होगा, हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो लूप एग्जिट हो जाएगा, लूप के बाहर चला जाएगा। थर्ड स्टेप, इफ इन्फो ऑफ पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू है 300, इन्फो क्या है 300 का 20, 20 इक्वल टू आइटम की वैल्यू 20, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है सेट, लॉक में पीटीआर की वैल्यू स्टोर करना है, मींस आपका पॉइंटर वैल्यू, आपका जो भी लोकेशन है वो क्या है, पीटीआर दैट इज 300, तो आपको जो नोड डिलीट करना है उसका लोकेशन आपको मिल गया दैट इज 300, एंड लॉक की में उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस अवेलेबल है दैट इज सेट, तो सेट की वैल्यू क्या स्टोर की हमने यहाँ पर 200, सो लॉक टी की वैल्यू 200 और लॉक की वैल्यू 300, ओके, एंड एग्जिट बाहर चला जाएगा, मींस जहां से भी कॉल किया वहां पर वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर लॉक की वैल्यू 300 मिल गई और लॉक टी की वैल्यू 200 मिल गई, ओके। नाउ सेकंड स्टेप, इफ वापस आ गए हम लोग प्रोसीजर से एल्गोरिथम में वापस आ गए। नाउ इफ लॉक इक्वल टू नल, लॉक की वैल्यू अभी मिल गई हमको दैट इज 300, 300 इक्वल टू नल होता है क्या, नहीं, 300 इक्वल टू नल नहीं होता, तो क्या करेंगे हम लोग, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी, तो थर्ड स्टेप में जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, थर्ड स्टेप में जाएगा, क्या करना है हमको, सेट लिंक ऑफ लॉक पी, मींस लॉक पी की वैल्यू है 200, तो 200 का लिंक पार्ट हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, लॉक के लिंक से, ओके, 200 का लिंक, 200 के लिंक पार्ट में हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, लॉक का लिंक, 300 का लिंक दैट इज 400, ओके, सो लॉक हमारा 300 है, ओके, सो 300 का लिंक पार्ट क्या है 400, ओके, 200 हमारा लॉक पी की वैल्यू 200 मिल गई हमको यहाँ पर, तो उसका लिंक पार्ट हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, 400 सेट कर रहे हैं, सो 200 का लिंक पार्ट हम लोग सेट कर रहे हैं लॉक ऑफ लिंक से दैट इज 400 से, तो ये बन गया 400, ओके, बन गया 400, दैट मींस दिस पॉइंट्स टू दिस, ओके, ये अब इस नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये लिंक हट जाएगा यहाँ से, ये लिंक भी हट जाएगा यहाँ से, ओके, इज दैट क्लियर, सेट लिंक ऑफ लॉक टी दैट इज 200 के लिंक में हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, 300 के लिंक, 200 के लिंक में 300 के लिंक को सेट कर रहे हैं, दैट मींस ये 200 वाला जो नोड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 400 वाले नोड को, 400 एड्रेस वाले नोड को, मींस ये 20 वाला नोड हमारा क्या है, लिंक से हट जाएगा। नाउ वी हैव टू, अब वो हट जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनयूज्ड रहेगा, हमको क्या करना है, उस नोड को अवेल लिस्ट में भी अपडेट कर देना ताकि वो नोड, वो मेमोरी किसी और को अलोकेट हो सके, ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू सेट दी लॉक का लिंक, लॉक हमारा 300 है, 300 का लिंक पार्ट क्या है, 300 का लिंक पार्ट, 300 का लिंक पार्ट है हमारा 400, ओके, उसमें क्या सेट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, लिंक ऑफ लॉक 300 के लिंक पार्ट में ये हमारा नोड हट जाएगा यहाँ से, दिस नोड आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, यहाँ पर आ गया, ये हमारा 300 वाला नोड है, इसके लिंक पार्ट में क्या सेट कर रहे हैं, अवेल सेट कर रहे हैं, अवेल की वैल्यू जो भी होगी वो हम लोग सेट कर देंगे, ओके, एंड हम उस पर्टिकुलर 300 को, 300 वाले नोड को अवेल की लिस्ट में ऐड कर देंगे, अवेल की लिस्ट में ऐड कर देंगे और फिर एग्जिट हो जाएंगे। In this way we can delete the node from circular header list. समझ में आया? Is that clear to everyone? Yes, sir. हाँ. So अभी बजा कितना है वो देखते हैं.
10:55। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपका लेक्चर है कि अभी आपका लेक्चर है, हाँ सर। आपका लेक्चर हो ना हो, मेरा लेक्चर है,